कमर में जोरदार आवाज। होमवर्क किया होमवर्क? चेक द आंसर्स। 31st sum. 31st sum. Guys, sum number 31. First sum. The balance 5 transactions of 31st sum. Check. Purchased a horse for 4,800 and paid carriage charges 200. So आपका horse कितने में पड़ा? आपको actually 5,000. So entry will be livestock account debit to cash account. Livestock account debit to cash account 5,000. Got it? Asset बढ़ा और cash घटा. Got it? Withdrawn from bank 5,000 for personal use. Entry drawings account debit to bank account. Drawings account debit to bank account 5,000. Is it clear? Drawings to bank 5,000. Drawings बढ़ा, bank घटा. Amount due from Girish 900 is proved to be irrecoverable and has to be written off as bad. I think that is bad debts. The entry should be bad debts account debit to Girish account. Bad debts expense बढ़ा, Girish asset घटा. So bad debts to Girish 900 rupees. Is that clear? Then paid for sales vouchers via debit card. What are sales vouchers? Sales vouchers are advertisement. जैसे Shoppers Stop का voucher देखा होगा आपने, 200 discount, 20% discount, 50% discount. That is all sales voucher. Okay, that's for promotion. So advertisement account debit to cash, bank. Advertisement account debit to bank account. All of you got that? Expense बढ़ा और bank asset घटा. Paid insurance premium by check. Entries insurance premium account debit to bank. Only insurance to bank is also fine. Insurance to bank या insurance premium to bank. All of you got that? Any doubt in those 5? No one? Page 65, standard textbook, question 2. Started business with cash 1 lakh and goods 50 and computer 50. Entry should be cash account debit 1 lakh, stock account debit 50,000, computer account debit 50,000 to capital. That will be 2 lakhs. Is that clear? Cash, computer, stock to capital. Mila? Purchase goods from Karina on credit 10,000 at 5% trade discount. So 10,000 पे पहले क्या करना है? 5% trade discount. So net amount is 9,500. Is that right? 9,500 and entry should be purchase account debit to Karina's account 9,500. Is that clear? Purchase account debit to Karina 9,500. Next, sold goods to Priyanka 20,000 at 10% trade discount. तो पहले क्या करना है? 10% trade discount minus करना है. Is that correct? So you get 18,000. Entries Priyanka account debit to sales account 18,000. Priyanka account debit to sales account 18,000. मिला आपको? Paid into State Bank of India 50,000. Entry should be State Bank of India account debit to cash account 50,000. या बैंक टू कैश भी चलेगा. बैंक एसेट बढ़ा और कैश घटा 50,000. Is that right? Then goods worth 2,000 are lost by theft. Entry is lost by theft account debit to goods lost by theft. बराबर है? Lost by theft to goods lost by theft 2,000. Lost बढ़ा, goods घटा. Then paid for rent 4,000. Entries rent account debit to cash account 4,000. Rent expense बढ़ा, cash asset घटा 4,000. Received cash of 17,500 from Priyanka in full settlement of her account. Full settlement मतलब बाकी का discount. So entry should be cash account debit, discount allowed debit to Priyanka. Cash account debit 17,500, discount allowed debit 500 to Priyanka 18,000. 18,000 लेना था ना प्रियंका से, ऊपर दिया हुआ है 18. 20 में 10% टीडी था ना, तो 18 लेना था. 18 की जगह 17.5 आया, तो 500 रुपीज इज डिस्काउंट. हेलो, मिला 500 रुपया डिस्काउंट. सो कैश डिस्काउंट अलाउड टू प्रियंका. Then paid for stationery purchase 8,000. Entry stationery account debit to cash account. मिला? Stationery account debit to cash account 8,000. Sorted? Next sum, today's sum, very important. We are doing sum number 32. See sum number 32.
स्टार मार्क करना इन द जर्नल ऑफ मिस्टर स्मार्ट या स्मार्ट. ओके, इन द जर्नल ऑफ मिस्टर स्मार्ट या इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट जर्नल एंट्रीज. इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट जर्नल एंट्रीज. स्मार्ट नाम है, कुछ भी देगा. हाइपोथेटिकल नेम्स. चलो इतना टाइम लगता है क्या? तो मार्जिन पे क्यों लाइन ड्रॉ करना? ऑलरेडी लाइन. चलो, इन द जर्नल ऑफ स्मार्ट. थोड़ा आगे ले जाना भाई, आराम से बैठेगा बेचारा. आगे ले लो, ले लो आगे. बैठा है तू. हाँ, आराम से. चलो अभी आराम से. सुपर. Come. In the journal of Smart, bought goods of 20,000 from Sunita at 5% TD, SGST 9 and CGST 9. Tell me, पहले TD की पहले GST? पहले TD हटाओ, फिर बिल वैल्यू बनेगी आपकी. बिल वैल्यू पे GST ऐड होता है. ठीक है, तो कैलकुलेशंस दिखाना है यहीं पर. पहले 20,000 इज योर ग्रॉस प्राइस, उस पे लेस TD कितना है? 5%. तो कितना होता है? 1,000. नेट अमाउंट इज 19,000. ऊपर का कोई काम का नहीं अमाउंट, वो इमेजिनरी था. आपको कितने में माल पड़ा है? 19. आपका बिल वैल्यू है 90. इज दिस क्लियर? अभी CGST और SGST इस पे ऐड करना है. तो ऐड CGST कितना? 9% एंड ऐड SGST 9%. 99 are 171. 1710, 1710. Is that right? And 19 plus 1, 20 plus 1, 21, 22, 420. Is that right? 22, 420. Is that correct? मिला? ओके, नाउ परचेज है तो कौन सा टैक्स होगा? इनपुट की आउटपुट? इनपुट होगा, बराबर है. तो who will tell me the entry? GR, right? GR shall tell me. Purchase account debit, input CGST. आराम से. Purchase account debit, then Input CGST. Input CGST debit. Input SGST. Input SGST debit. To Sunita. To Sunita's account. Are you buying on cash or credit? क्रेडिट. समझा सबको? पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया. ठीक है, टेल मी द अमाउंट्स दिया. परचेज में Purchase 19,000. 19,000. 1710, 1710 to Sunita. 22,420. सुनीता को कितना देना है? 22,420 विद GST. इज इट क्लियर? ध्यान दो इधर. ओके, नरेशंस आता है सबको? अभी नरेशन स्किप करो. कंफर्टेबल विद नरेशंस? सब कुछ आता है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना. हाँ, सब फर्स्ट ऑफ नवंबर. होमवर्क सब में देखूंगा, नहीं रहेगा तो इधर बिठा के.
अभी देखो, स्किप द नरेशंस। फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? चलो बढ़ते हैं आगे, एग्जाम में लिखना है, इधर स्किप करते हैं। सी फोर्थ वन, पहला वाला समझा सबको? परचेज इनपुट इनपुट टू सुनीता, माल खरीदा है, पैसा देना बाकी क्रेडिट पर। रीड फर्दर नाउ। सोल्ड गुड्स, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम सुनीता टू विजया at 20% profit on cost. CGST is 9, SGST is 9%. अभी देखो, आपको नॉर्मली तो सेल वैल्यू दी जाती है कि आपने यू सोल्ड द गुड्स एट 40,000 एट सो एंड सो GST, सेल वैल्यू दी जाती है नॉर्मली, इट इंक्लूड्स द प्रॉफिट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो और बाद में सेल वैल्यू ढूंढो और बाद में GST पे बेचो। दिस इज हाउ द बिजनेसमैन वर्क्स प्रैक्टिकली कोई थोड़ी उसको बोलेगा कि इतने में बेच, उसको खुद को डिसाइड करना होता है कितने में वो सेल करे, लेकिन तो अभी आराम से सोच के बताओ, पहले आपको प्रॉफिट ऐड करना है और GST भी है, तो पहले क्या करोगे? पहले प्रॉफिट ऐड करोगे कि पहले GST? पहले प्रॉफिट। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। नोटबुक का एग्जांपल ले लो, 50 की नोटबुक 40 में पड़ी, तो आपकी जो नोटबुक की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 40 रुपीज है। उस पे आप क्या करोगे? ऐड प्रॉफिट एंड देन जो सेल वैल्यू उस पे GST। तो हमेशा याद रखना, पहले प्रॉफिट फिर GST, पहले प्रॉफिट फिर GST। डिटरमाइन योर सेलिंग प्राइस एंड देन सेल इट, उसके ऊपर GST लगा। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, अपने को प्रॉफिट ऐड करना है कॉस्ट प्राइस। अभी आपका कॉस्ट प्राइस है क्या? क्या आपका कॉस्ट प्राइस 20,000 है कि 19,000 है कि 20 to 40? पक्का? वाई नॉट 20? वो तो इमेजिनरी था। आपका बिल कितने में पड़ा? 90। तो आपको कितने में पड़ा? परचेज कितने में किया? 90। जो परचेज होता है ना वही आपका कॉस्ट होता है, जो परचेज प्राइस होता है वही आपका कॉस्ट प्राइस होता है। समझ में आया? तो ये तो MRP है, MRP के ऊपर थोड़ी प्रॉफिट लगा, कॉस्ट पे लगा। तो आपको कितने में पड़ा माल? 19,000। गॉट इट? वाई नॉट 20 to 40? ये GST इंक्लूसिव है। क्या GST अपना कॉस्ट है? नहीं। GST अपने जेब से तो हम देने वाले नहीं। तो याद रखना, क्या याद रखना? अपना कॉस्ट प्राइस इज अवर परचेज प्राइस। अपना कॉस्ट प्राइस इज अवर परचेज प्राइस। जितने में खरीदा वो अपना कॉस्ट है। तो प्रॉफिट लगाना है तो किस पे लगाना है? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, आर वी सेलिंग पूरा की आधा? तो आधा ले लो, 19,000 का आधा, that is 9,500. This is our cost price. This is our cost price. Is it clear? तो अपने को कितने में पड़ा माल? 9,500। इसके ऊपर प्रॉफिट लगाना है। कितना है प्रॉफिट? 20%। Add profit 20%, which is I think 1900। 1900 का प्रॉफिट लगा के आपका सेलिंग प्राइस मिल गया आपको 11,400। तो आपका बिल कितने का बनेगा? तो 11,400। वन सेकेंड, व्हाट वाज आवर कॉस्ट प्राइस? 20, 19 और 20 to 420, तो 90 नेट ऑफ फी। कितने में परचेज किया वो आपका कॉस्ट। डिड वी सेल पूरा की आधा? तो ओनली आधा इज 9,500। और पहले क्या करना है? पहले प्रॉफिट की पहले GST? पहले प्रॉफिट। बिकम थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। अपना मार्जिन डिसाइड करो और अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, मैं इतने में बेचने वाला है। उसके बाद ये जो बिल बनेगा उस पर GST लगाए। GST एकदम एंड में लगेगा, हमेशा लास्ट में। पहले GST ऐड करके फिर प्रॉफिट ऐड मत करो। पहले प्रॉफिट ऐड करो, अराइव एट योर सेलिंग प्राइस, फिर जो सेल वैल्यू का बिल बनेगा उसमें चिपका दो GST। इस पे यू विल ऐड GST। कितना GST है? ऐड CGST 9% एंड ऐड SGST 9%. So 114 into 9, 1176. Is it? 1026. 1026. 900 and 14 nines are 126. 1026. बराबर? 1026, 1026. 11, 12, 13, 13,452 आए।
Is that right? Yes. 13,450. Jaini, can you tell me the entry for this? अच्छा मुझे एक बात बता. Will you record this profit anywhere? Why? End में होगा. Year end में होगा. Very good. Because it is on goods. But assets होते तो record कर लेते. Goods पे record नहीं कर. कब होता है? Year end. सब साथ. Very good. Jaini, tell me the entry for this. We are selling on credit. Is it? Or cash? क्रेडिट. पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं है. तो विजयास अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. वेरी गुड. टू सेल्स. टू सीजीएसटी अकाउंट. वेरी गुड. टू एसटीएसटी अकाउंट. अरे आउटपुट तो बोलो, मैं भी लिखते जा रहा हूं. टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट. टू आउटपुट एसटीएसटी अकाउंट. सेल के वक्त इनपुट की आउटपुट. आउटपुट. परचेज के वक्त इनपुट, सेल्स के वक्त आउटपुट. समझ आया? एंट्री सेम ही है, खाली प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? बिकॉज इट इज गुड्स नॉट एसेट. ओके. सो टेल मी, विजया में क्या अमाउंट है? जयनी. विजया, विजया से कितना लेना है? ये लेना है 30,450 विद जीएसटी. आपका इनकम कितना है इसमें? सेल्स 11,400. ये आपका इनकम है विद प्रॉफिट. Taxes are 1026, 1026. That's how you do it. तो अलग क्या हुआ यहां पे, समझ आ रहा है कुछ? नॉर्मली आपको ये दिया होता है, ये यहां से शुरू होता है, सेल प्राइस दिया होता है, आपसे जीएसटी ऐड करते. यहां पे आपने ढूंढा, लाइक अ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन ऐसे ही सोचता है, पहले जो भाव पे माल आया उस पर अपना मार्जिन ऐड करता है और फिर बेचता है, जीएसटी लगाता है. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड द कैलकुलेशंस? आधा ही बेचा था तो आधा लिया, उस पर प्रॉफिट ऐड किया, फिर जीएसटी लगा के बेचता. एंट्री सेम ही है. याद रखना, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि गुड्स है. गुड्स के प्रॉफिट लॉस कब रिकॉर्ड होंगे? ईयर एंड पे रिकॉर्ड. ठीक है. डेट लिख दो इसकी. व्हाट इज द डेट? 4th of November. नवंबर है ना? बढ़े आगे. सीधा नेक्स्ट वन. Purchased machinery for cash and paid 1100 wages for installation of machinery. नव्या, मशीन खरीदा और वेजेस हुआ इंस्टॉलेशन का, क्या करना है? मशीनरी अकाउंट डेबिट. हाँ. वेजेस अकाउंट. Will you show wages separately? मशीनरी 26,100. Why not wages separately? Comes at the same as just one time. Right? One time asset. So long term. घड़ी घड़ी देने की जरूरत नहीं. एसेट पे खरीदने वक्त जो खर्चा होता है क्या करते हो? एड अप टू द. अभी किया ना आपने पहला होमवर्क का, घोड़ा प्लस कैरेज एड अप टू द कॉस्ट. वही तो है. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट. वेजेस अलग से नहीं है, इसी में ऐड हो जाएगा. मशीनरी टू वेजेस, मशीनरी टू कैश तक. मशीनरी टू कैश 26,100. समझा सबको? एसेट खरीदते वक्त कॉस्ट हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो एड अप टू द एसेट. वन टाइम है, लंबा चले, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस. नेक्स्ट वन, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस फाइन. नाउ फॉर ट्रैवलिंग यू कैन यूज ट्रैवलिंग एक्सपेंस. माही, व्हाट विल बी द एंट्री? Traveling expense to cash. ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश. एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घटा. ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश कितना अमाउंट इज? 5. ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश अमाउंट इज 5. being traveling expense paid. Sorry, what? Conveyance क्वेश्चन में दिया तो राइट कन्वेंस, ट्रैवलिंग दिया तो ट्रैवलिंग. दोनों यूज होता है प्रैक्टिकली. ट्रैवलिंग थोड़ा सा लंबा रूट्स का रहता है, कन्वेंस शॉर्ट रूट्स का. लोकल, लोकल के लिए आप कन्वेंस. ट्रैवलिंग दिया तो ट्रैवलिंग, कन्वेंस दिया तो कन्वेंस, दोनों यूज. जो क्वेश्चन में दिया. Now Mr. Smart paid 11,000 to Somaiya College for his son's fees. Who is smart? We are only smart. We are writing in the books of smart. तो ये क्या हुआ? सन स्कूल फीस मतलब क्या होगा? ड्रॉइंग पे एंट्री क्या बनी? ड्रॉइंग्स टू कैश. ड्रॉइंग्स बढ़ा, कैश घटा. ड्रॉइंग्स टू कैश. ड्रॉइंग्स टू कैश
11,000. Can you write son school fees account? No, because personal है. Is it clear? सोमया वो तो पे किया है, वो अपने काम का नहीं है. घर पे लेके जाके कुछ भी करे उसका, तो पानी पूरी खाए, भेलपूरी खाए, कि बच्चे का फी पे करे, कि डालिया रस खेले, अपने को कोई फर्क नहीं. नेक्स्ट वन, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स ऑफ 7,000. ये सबको मालूम है, मजा आता है. नो एंट्री. नो एंट्री में खाली नो एंट्री देख के छोड़ने का नहीं. Placing an order is not a transaction. रीजन लिखने का, नहीं तो कट जाएगा मार्क्स, आधा एक मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. Hence no entry. Hence no entry. सर लेकिन ये जो सन का फीस ड्राइंग में निकाला बराबर, तो वो उसका जो प्रॉफिट है हाँ, उसमें से कम हो जाएगा, तो फिर टैक्स कम भरना पड़ेगा. नहीं बेटा, जो प्रॉफिट होता है ना, वो टैक्स कैलकुलेट करने के बाद वाले प्रॉफिट के अंदर से वो टैक्स कर सकते. पहले टैक्स कट जाएगा प्रॉफिट में से. तो फिर उसने बिजनेस में भी लिखा खुद के जेब से भरना अच्छा होगा, बिजनेस में से निकाल के भरा, टैक्स तो लग नहीं वाला है. हाँ, और जब पैसे भी तो होने चाहिए. आएंगे कहाँ से? बिजनेस से तो आएंगे पैसे. पैसे बिजनेस में से तो आ रहे हैं, और इनकम होती तो बिजनेस क्यों करता? इनकम जो आ रही है, चल रहा है कैसे? बिजनेस ही तो चल रहा है. तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होंगे, जो आपके 10 लाख के प्रॉफिट हुए, फिर 3 लाख टैक्स पे बचेंगे 7 लाख, वो आप घर पे लेके जाओ, वो तो चलो समझा. पे टू सुनीता 15,000 ऑन अकाउंट. मुझे बताइए सुनीता कहाँ से टपकी? कौन है सुनीता? ये रही सुनीता. सुनीता कौन थी? लायबिलिटी, क्रेडिटर थी. कितना देना था उसको बता सकते? 22,420 देना था सुनीता को. कितना दे रहे हो? बाकी का डिस्काउंट नहीं. ऑन अकाउंट दिया, इन फुल सेटलमेंट नहीं दिया. ऑन अकाउंट, बस बाकी का पैसा पेंडिंग है, फ्यूचर में दे दे. फिलहाल वी आर गिविंग ओनली 15,000, राइट? तो शिखा, टेल मी व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दिस? अरे अरे अरे, पे कर रहे हो कि रिसीव कर? तो हाँ, इतना छोटे में भी मिस्टेक कर दोगे तो खत्म. फिर सुनीता अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, टू कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पैसा जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. या फिर मॉडर्न अप्लाई करो, सुनीता लायबिलिटी घटा और कैश एसेट घटा. रूल अप्लाई किए बिना जंप मत मारो आंसर. आपको लगेगा आसान है, लेकिन इसमें भी सिलेबस. बी अलर्ट. सुनीता टू कैश, तो कितना दिया सुनीता को? 15. और कितना देना बाकी है सुनीता को?